Bismillahirrahmanirrahim. My name is Ijaz Ansar. I'm the President, CEO Club Pakistan and CEO Today magazine. We have a special program, Coffee with CEO by CEO Club Pakistan. The basic objective of this program is to have the inspiration and the direction from the CEOs. और हम CEO से ये जो गुफ्तगू करते हैं, ये छोटी सी कन्वर्सेशन है जिसमें हम पॉजिटिविटी को हम सीख करते हैं, सिल्वर लाइनिंग ढूंढते हैं in the darkness, especially the COVID and amid the COVID and आफ्टर पोस्ट कोविड। तो आज हमारे पास एक मेहमान शख्सियत हैं, वो एक बड़ी पढ़े लिखे इंसान है, अब्दुल अजीज अनीस साहब, जो कि CFA हैं और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं BIPL सिक्योरिटीज़ के। हम इनके बारे में इनसे पूछेंगे पाकिस्तान की स्पेशलिस्ट स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से, पाकिस्तान इकॉनमी के हवाले से और इनकी अपनी पर्सनल अचीवमेंट्स के हवाले से, और आखिर में लास्ट में CEOs की जो कोर कॉम्पिटेंसेस क्या होती हैं। तो प्लीज़ वेलकम मिस्टर अब्दुल अजीज अनीस साहब। सर वेलकम सर। Thank you for having me. सर अल्लाह ताला आपको बचा के रखिए जी, सारी अपनी महफूज रखिए अपनी सारी इन कोविड के असरात से। बहुत लोग हमारे प्यारे चले गए अल्लाह के पास और बड़ा एक्सपीरियंस किया। सर मुझे ये बताएं अपने बारे में, अजीज़ भाई बताएं थोड़ा सा कि आप कैसे आपकी जर्नी की और आप माशाल्लाह एक इतनी बड़ी कंपनी के CEO बने सर। कहाँ से कौन सी दश्त की स्याही आपने देखी सर? जी मुझे लगभग कुछ 25 इयर्स हो गए इस इंडस्ट्री में। मुझे 25 years हो गए इस इंडस्ट्री में। I started my career in 1995 ठीक है in WICAR Securities, which at that time was an emerging market stock brokerage arm based out of Hong Kong. I was part of the Pakistan operations. वहाँ से career start किया research में, then moved into sales, then moved to Hong Kong. वहाँ पर मैंने subcontinent sales की। I broke the India, Pakistan, Bangladesh and Sri Lankan markets. Came back, was promoted as the chief executive for WICAR Pakistan. उसको चलाया। फिर जब 2003-2004 में एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस आया था तो WICAR pulled out of Pakistan. उस वक्त I then partnered with Bank Al-Falah to set up their asset management and their brokerage operations. वो चलाया कुछ 8-10 साल तक। फिर उसके बाद I left that and I moved to Saudi Arabia. And I was the managing director at NCP Capital as an investment strategist for their global portfolio. Worked there for about 2 years, came back to Pakistan and then joined BIPL Securities and right now I'm running this as the chief executive. Sir, BIPL के अगर आपने माशाल्लाह जो the chief executive और आपने इतना जर्नी तय किया 25 years almost, ये प्रोफेशनल आपकी जर्नी है। इस जर्नी में आपने क्या सीखा, क्या लर्न किया, क्या आपकी की लर्निंग्स हैं कि एक CEO बनने ताकि स्टेप पे प्रोसेस पे, क्योंकि लोग आज किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं और कहते हैं हम CEO बन जाएं, अगले महीने बन जाए, 1 साल में बन जाए। इस 25 साल लगे सारे प्रोसेस में यहाँ तक पहुँचने में, क्या की लर्निंग्स थी आपकी? यार चीफ एग्जीक्यूटिव के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है ना, वो है कि यार अब एक बच्चा होता है ना, उसको हम कहते हैं बड़े होके क्या बनना है। जी। तो एक चीफ एग्जीक्यूटिव के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात है उसको पता होना चाहिए कि उसको करना क्या है। ये कंपनी है, where does he want to take this company in the next 5 to 10 years? का विजन क्या है इस कंपनी के? ठीक है, that's the most important. पहले जाना किधर है वो पता होना चाहिए। आपने Alice in Wonderland पर पढ़ ली होगी। Where you want to be? I don't know. Anyway, you can go. So you need to know. The idea is not to manage day-to-day operations. As a chief executive, you need to have a team that does that for you. And you have to strategy. Long term. आपको long term सोचना है, आपका विजन होना चाहिए। And the most important thing after having a vision is having a team. आप हर चीज नहीं कर सकते। You can't do everything, and you should not do everything, to be honest. You need to have a team that you can rely on, that you can trust. वो टीम के साथ आप काम करते हो, ठीक है। A, vision, B, team, and 3, you need to have empathy. You need to know and you need to feel for your team. आपने उनको टारगेट दे दिया, फिर बम्बू कर दिया, डंडा कर दिया, you're detached from your team. It doesn't work that way. You have to have a team, but you need to be a part of the team also. Ownership होनी चाहिए। आपकी ownership होनी चाहिए। You need to play both sides. आपने टीम को कहते जी ठीक है ये अब आप करते रहे और मैं CEO हूँ, मैं आपको मॉनिटर करूंगा, ऐसे भी नहीं चलता। Walk the talk. You have to walk the talk. You have to be with the team. You have to work with the team to do this. सर मुझे ये बताइए पाकिस्तान की इकोनॉमी जब से ये 3 साल से 5.6 GDP से हम नीचे गिरे और उसके बाद कोविड आ गया, कोविड ने भी इकोनॉमी को हिला के रख दिया। आप पाकिस्तान की इकोनॉमी में क्या पॉजिटिव सिल्वर लाइनिंग देखते हैं और क्या चैलेंजेस देखते हैं कि हाउ टू टर्न अराउंड पाकिस्तान इकोनॉमी बीइंग अ चीफ एग्जीक्यूटिव? यार देखिए पाकिस्तान इकोनॉमी ने हिस्टोरिकली वी हैव बीन अ कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी।
हम जो पहले भी हम जो ग्रोथ की बात करें, दैट्स फैंटास्टिक, ऑल एंड गुड वेल, बट यू नो दैट वाज लेड बाय कंजम्पशन, नॉट प्रोडक्शन. That was led by you importing stuff, you borrowing from the world and consuming. Traders. वही हो रहा था, आप लोगों से उधार लेते थे और उनका प्रोडक्ट्स खरीदते थे और वो पैसा घूम करके वापस बाहर ही जाता था. I think the focus should have been on production and investment related growth, जो अभी हमें थोड़ा बहुत नजर आ रहा है. So as long as we keep focus on investment related and productive related investments and growth, I think we should be okay. Because आपके एक ध्यान में रखें, आपके पास एक बड़ी मार्केट है domestically. We have 225 million people. It's a huge country. It's the 5th largest country on the planet. ठीक है ना? तो हम हमेशा सिर्फ कंजम्पशन में जिंदा नहीं रह सकते. True. We need to have a skill set where we, number one, have goods being produced in Pakistan and those goods being exported out of Pakistan. ये जरूरी है. And number two, in order to have that productive base, सबसे important चीज जो I think गवर्नमेंट को हमने करनी चाहिए वो capital, human resources जो है उनको डेवलप करना है. Okay. Human resources, I think, unfortunately, I feel personally we lag behind some of our regional competitors. Quality manpower जो है ना वो बहुत जरूरी है. सर बड़ी प्यारी बात की आपने. अजीज भाई मुझे ये बताइए कि कोविड आ गया 2020 में, अब 2021 में हम आ गए, इसके क्या इम्पैक्ट आए बिजनेसेस पे और कैसे आपकी खासकर जो सिक्योरिटीज जो कंपनी है जो VIPL है इन कंपनीज ने कैसे रिकोप किया, बाउंस बैक कैसे किया कि आज मार्केट माशाल्लाह पे एक अच्छे सेंटीमेंट्स पे खड़ी है, एक अच्छे फिगर पे खड़ी है. कोविड का इमीडिएट इम्पैक्ट तो ऑब्वियसली वाज नेगेटिव. एवरीथिंग जस्ट शट डाउन. ठीक है ना? तो जो कंजम्पशन थी, जो एक्टिविटी थी, जो प्रोडक्शन थी, एवरीथिंग शट डाउन. सो दैट अगेन वाज अ वेरी नेगेटिव शॉक टू द सिस्टम एंड टू एवरीबॉडी इंक्लूडिंग अस. तो उस चीज में जो आई एम अज्यूमिंग व्हाट एवरीबॉडी डिड एंड व्हाट वी डिड आल्सो वाज दैट यू फोकस इंटरनली. आपके जो एक्सेस फैट है या आपके जो ऐसे रिसोर्सेज या कॉस्ट स्ट्रक्चर है जो अनसस्टेनेबल है, पहले तो आपने उनको स्ट्रीमलाइन करना है. एक चीज इंपॉर्टेंट है कि ये इस पीरियड में ना अगेन जो मैं शुरू में की थी, एम्पैथी इज इंपॉर्टेंट. वी एज अ कंपनी वी डिड नॉट फायर एनीबॉडी एज सच. हमने हमारी जो स्ट्रक्चर्स को लीन किया है, हमने जो प्रोडक्टिव एसेट्स है उनको मजीद प्रोडक्टिव बनाने की कोशिश की है. हमने अननेसेसरी जो हम चीज़ों पे फोकस था उसको ख़त्म कर दिया. तो वी स्ट्रीमलाइंड आवर ऑपरेशंस. वी गेव मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू पीपल टू एक्सप्लोर अदर एवेन्यूज ऑफ ग्रोथ. अगर एक बंदा सिर्फ एक ही चीज़ कर रहा है तो हमने कहा यार ठीक है, अभी पैसे नहीं बने, तुम 2 चीज़ें और भी देख लो. इंस्टेड ऑफ फायरिंग दैट पर्सन, we may try to make that person more productive in terms of searching for other revenue streams in this difficult market. So that worked for us. We did not fire anybody, but coming out of it, we now have a leaner organization, we have a meaner organization, and we have people who, instead of just focusing on one revenue stream, are now focusing on 2 or 3 multiple revenue streams. अजीज भाई ये क्या देखते हैं आप नेक्स्ट अगले 2-3 इयर्स की जो ट्रेजेक्टरी है, ये गवर्नमेंट के अभी 2.5 साल पड़े हैं, ये जो रेजीम में ये पॉलिसीज बनाई अल्लाह करे ये चले, जो लॉन्ग टर्म पॉलिसी स्पेशली एक्सपोर्ट रिलेटेड, आप अपनी मार्केट की ग्रोथ को खासकर जो है स्टॉक एक्सचेंज या बिजनेस को कैसे उसकी ट्रेजेक्टरी को अगले 3 साल में कहाँ देखते हैं? I think the stock market, if you ask me on a valuation basis, is still attractive. अगर आप regional comparisons देखें, compare to the MSCI emerging market or frontier markets, we're still at a 30 to 40% discount to regional markets, even after having coming up from the bottom. हमारी जो bottom March में लगा तो उससे market is up about 50-55%, but even then, regional basis we are still at a 30-40% discount. So there's still room for growth in this market. Corporate earnings भी 15 से 18% की growth आ रही है, I think which is fantastic. GDP growth हमारा जो slow down हो गया था पिछले 1-2 साल, वो going forward I think थोड़ा pick up कर रहा है. That again should add to the company's profitability. तो in the next 2 to 3 years I think earnings growth रहेंगी, better होगा, and I think the market will try to go back or in fact reduce the discount to the regional multiples. Okay. So we're still looking at the market another 18 to 20% upside at least in the next 1 year. Next 1 year. But there's a very positive sentiment. Oh, for sure. ये growth है इसमें और ये time है for investment. Yes, investment, but not investment blindly. I think that any investor has to calculate it. They have to do their homework, look at what companies are investing, study their balance sheets, income statements देखें, उनके multiples देखें, and then make an informed decision to invest. एक क्वेश्चन है बड़ा डिफिकल्ट, आजकल बड़े हालात खराब हैं, बहुत ज्यादा जॉबलेसनेस हुई, बहुत ज्यादा लोगों की जॉब्स कईयों ने सस्टेन किया, कुछ CSR की बेसिस पे लोगों को ले ऑफ नहीं किया. आपकी अपनी ऑर्गेनाइजेशन से क्या स्ट्रेटजी रखी? ले ऑफ्स किए नहीं किए? हमने जैसे शुरू में ना, वी डिड नॉट डू एनी ले ऑफ्स. कोई बंदा हमको छोड़ के जा रहा है वो जा रहा है, हमने उसको रोका नहीं, बट वी डिड नॉट फायर एनीबॉडी. जो बंदा अगर छोड़ के भी गया है फॉर वट एवर रीजन, हमने जो एग्जिस्टिंग बंदा है उसी को एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी. देखिए एक जमाना था कि मैं एक ही काम करता था. अब गोइंग फॉरवर्ड ना ऐसा
होगा नहीं कि एक आदमी एक ही काम करेगा. You have to multitask. ठीक है. अगर मैं एक ही काम करूंगा, because the way the world is moving, the way competition is increasing, you know, I have to have multiple skill sets. और उस skill sets में मैं अपनी value market पे बनाऊंगा. अगर मैं एक आदमी हूँ, मैं सिर्फ for example एक stock market को pitch कर रहा हूँ, तो मैं अगर मेरा client है, मैं उसको stocks भी pitch कर सकता हूँ, तो उस client को मैं commodities भी pitch कर सकता हूँ. उस client के लिए मैं डेट इंस्ट्रूमेंट्स में भी थोड़ा बहुत काम कर सकता हूँ. मैं उस क्लाइंट्स के लिए को अगर उसकी कंपनी है, उसको लिस्टिंग करानी है, तो मैं उसमें भी उसकी टारगेट कर सकता हूँ यार, उसमें भी हमारे को ऑर्डर मिल जाए. सो एक रिलेशनशिप है ना, एक रिलेशनशिप को आपने मल्टीपल फ्रंट्स में कैप्चर करना है और उसके मल्टीपल फ्रंट से आपने रेवेन्यू स्ट्रीम लेनी है. तो that I think is what's going to happen going forward. I think people will have to do multitasking. People will have to develop skill sets not just in one field but maybe in multiple fields. That's going to be the differentiating factor for between survivors and those who don't survive. सर गोइंग द लास्ट पार्ट ऑफ द आज के सेशन में छोटा सा ये बताइए कि सीईओ के अंदर जो होता है कि आप क्या समझते हैं उसके सबसे इम्पोर्टेंट एक स्किल है जो कि हार्वर्ड की रिसर्च कहती है कि वो है इमोशनल इंटेलिजेंस फॉर सीईओज. क्योंकि ऊपर वाले लेवल पे बहुत प्रेशर होता है, बहुत स्ट्रेस होता है. आप अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस स्किल्स को क्या समझते हैं कि ईक्यू स्किल्स कितने इंपॉर्टेंट है फॉर अ सीईओ और हाउ यू एक्सरसाइज, या आपने एम्पैथी की बोली इज अ पार्ट ऑफ basically EQ. Why EQ is important? Yeah, because see, especially in our business ना, हमारा business it's all about people's business. हमारी एक फैक्ट्री नहीं है जो मशीन ने आपने बटन ऑन करना है, सर्विस है, उसने चल जाना है, ठीक है ना. हमारा बिजनेस इज पीपल्स बिजनेस. और हमारे जो ट्रेडर्स हैं, जो सेल्स वाले हैं, दे ओन द रिलेशनशिप विद द क्लाइंट्स. ठीक है ना. तो अगर कोई एक बंदा कंपनी छोड़ के जाता है तो वो अपने साथ वो रिलेशनशिप लेके जाता है, ठीक है ना. तो it's a very people's business. In that people's business, it's important to connect with the people, to have that EQ जो आप कह रहे हैं, that empathy, that's most important. देखिए आजकल बंदा सिर्फ पैसे के लिए काम नहीं करता है, ठीक है ना. वो एक satisfaction भी होती है, एक comfort होता है, या टीम होती है कि यार मेरे साथ ये लोगों के साथ काम करने में मजा आता है, चंद लोगों के साथ आपको काम करने में मजा नहीं आता. True. हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको बता सकता हूँ कि हमारे यहाँ भी जो लोग काम करते हैं उनको बाजार से ऑफर्स आती है एट अ हायर पैकेज, बट दे डोंट गो बिकॉज दे अंडरस्टैंड द वर्किंग एनवायरनमेंट, द कल्चर, इमोशनल एक अटैचमेंट होती है. उनको पता है कि यार अगर मुझे कोई काम है तो मैं सीईओ के कमरे में बगैर अपॉइंटमेंट लेके जस्ट आई कैन जस्ट वॉक इन एंड टॉक टू द सीईओ. ट्रू. दैट मैटर्स. ये ऑनरशिप होती है किसी दैट मैटर्स. दैट्स इंपॉर्टेंट. सर ये बताइए कि डिसीजन मेकिंग इज वन ऑफ द क्रिटिकल स्किल फॉर अ सीईओ सक्सेस. आपने अब्दुल अजीज ने कोई लाइफ में इतनी 25 years of journey में कोई 2-3 ऐसे डिफिकल्ट डिसीजंस किए हो जो कि आपको रिग्रेट करना पड़ा हो? रिग्रेट करना पड़ा हो, ना करना पड़ा हो, या रिग्रेट करना पड़ा हो, आइदर डिफिकल्ट डिसीजंस होते हैं. सी I would not lie and say guys नहीं वो difficult decision नहीं होते. There are difficult decisions you have taken, and those difficult decisions normally involve people. Yes, जैसे lay off करना, ये करना, those involve people. Not just lay off, maybe not giving the promotion to somebody that he thinks he deserves it, but you know that he doesn't deserve it. ठीक है. True. And then handling that person, and because जो बंदा जहाँ से वो आ रहा होता है ना, वो अपने reality, उसकी reality में एक चीज है, that is that person's reality, and in that person's reality it may be different from the actual reality that you feel is not right. Difficult decisions लेने पड़े. You have to live with it. See, the point is कि जिस कुर्सी पे आप बैठे हो ना, वहाँ पर हर चीज bed and roses नहीं होते. वहाँ पर you need to take those difficult decisions जो आपको रात को सोने भी नहीं देते at times. You at times feel guilty, मैं नहीं कहूँगा, but you at times feel not sure कि यार मैंने गलत decision तो नहीं लिया, because आपका जो decision है that affects other person's lives. ठीक है ना. तो yes, difficult decisions लेने पड़ते हैं, and as part of the senior management you need to live with that. That's what you get paid for, I guess. अजीज ये बताइए कि जिंदगी में एक जो लफ्ज़ है सक्सेस, ये बड़ा रिलेटिव टर्म है. हर बंदे की अपनी एक कनोटेशन है, डेफिनेशन है ऑफ सक्सेस. आपने जो 25 साल की जो जर्नी में क्या इवॉल्व किया, व्हाट इज द ये जो रेसिपी ऑफ सक्सेस क्या अपनी आपकी डेवलप हुई? यार सक्सेस जो है ना, इज नॉट व्हाट अदर पीपल से योर इज सक्सेस. टू बी ऑनेस्ट, सक्सेस कम्स फ्रॉम इनसाइड हियर. अगर आप दुनिया आपको कहेगा आप सक्सेसफुल हो, लेकिन इनसाइड यू फील कि यार आई हैव नॉट अकॉम्प्लिश्ड व्हाट आई कुड हैव अकॉम्प्लिश्ड, देन मे बी यू आर नॉट अ सक्सेस इनसाइड. आई थिंक सक्सेस इज व्हाट यू फील एट द एंड ऑफ द डे. एट द एंड ऑफ द डे, अगर आई स्लीप
at night and I think I've done what I could have done and I've accomplished what I could have accomplished, then I'm successful. It doesn't matter कि सामने वाला क्या बोल रहा है. लेकिन अगर सामने वाला आपको तारीफें कर रहा है और आपके कह रहा है you're a superman, but deep down inside I feel I have not accomplished what I could have accomplished, then I don't think I'm a success. So I think it's very internal. It's what satisfies you here. True. Sir, गुस्सा आता है, कैसे कंट्रोल करते हैं? हाँ, गुस्सा आता है. ये हमारे जॉब में गुस्सा आता है, for sure आता है. फ्रस्ट्रेशन होती है. It's there. ये हो जाता है. It's natural, human. See, हमारा again I come back to what we are doing. You know, we are a brokerage house. So हमारे client की positions होती हैं, calls होती हैं, calls गलत हो जाती हैं, सही हो जाती हैं. Margins पे trade कर रहे होते हैं client के, margins debit में आ जाती हैं. तो you know, all sorts of things happen. गुस्सा आता है and we explode at times. But that's fine. हो जाता है, गुस्सा भी कर लेते हैं, कभी-कभी शोर शराबे भी कर लेते हैं, कभी-कभी पी लेते हैं. Depends on the situation. But it's part and parcel. मैनेज करते हैं, कोई वर्कआउट करते हैं, नमाज पढ़ते हैं या कोई आउटिंग करते हैं या किताबें पढ़ते हैं, क्या आपकी क्या कोई एक दो प्रैक्टिकल जो आपका एक्शन में कन्वर्ट होता है, उसको भूल जाते हैं, जगह छोड़ देते हैं? Workout. I try to work out a little bit. I think that's a good stress reliever. I think your faith definitely helps. You know, अगर आपका ईमान पक्का है तो आपको पता है कि एक लेवल के बाद चीजें are not actually in your control. एक ऊपर अल्लाह ताला बैठा है, जो फाइनल डिसीजन उन्हीं के पास है. तो आप अपनी लेवल की बेस्ट ट्राई कर लो and then leave the rest to Allah subhanahu wa ta'ala. Let you know, he takes the final decision. ये faith आपको काफी that helps. That's important because हमने 25 साल में तो हर कोई ने, I'm sure आपने भी देखा होगा कि you know आप प्लान बनाते हो और एक अल्लाह ताला प्लान बनाता है. Man proposes, God disposes. तो आपका प्लान एक हद तक चलता है, उसके बाद फिर आप you know you put your head down. गवर्नमेंट तो सारे प्लान उड़ा दी ना दुनिया के, अब तो नए प्लान बनेंगे. सर मुझे ये बताइए कि एक हर सीईओ ना एक मेंटोर भी होता है. वो बच्चों के साथ, आप यूनिवर्सिटीज में टॉक्स भी देते होंगे, अपनी इवन ऑर्गेनाइजेशन में लोगों को मेंटोर करते होंगे. आपका अपना मेंटोर कौन है? Who is your role model? Hi, good question. Who's my role model? Anyone to sometimes जो भी होते हैं. I to be honest, I never had a role model. I might sound strange, but I never had a role model. कि आपसे सीख करते हो, आप उनसे यार गलतियां कर करके सीखा है जिंदगी में. गलतियों से सीखा है. गलतियां मेंटोर्स हैं. गलतियों से सीखा है, खुद चीजें की हैं. I've done things that probably at a young age that people haven't done. तो सीख लिया, गलतियां खा के धक्के खा के सीख लिया. जबरदस्त. सर ये बताइए कि एनी अचीवमेंट आज की डेट में टिल टुडे यू आर प्राउड ऑफ? बाकी सारी इजाज, ये मैंने बाकी सारी चीजें एक तरफ, जैसे मैं किताब होती है मैं कहता हूँ दिस इज माय प्राइड, बाकी सारी चीजें छोटी हैं. A work in progress, let's put it that way. Work in progress. Best has yet to become. I hope so. I hope so. Has yet to come. सर आपकी फेवरेट बुक कौन सी है? कोई ऐसी दो तीन लीडरशिप पे, खासकर मैनेजमेंट पे, फाइनेंस पे बता दें यार. जो I to be honest, I'm a believer in learning on the job. ठीक है, किताबें पढ़ के आप एक लेवल तक सीख लोगे, उससे ज्यादा I feel नहीं सीख सकते. बट अगर आपने पूछा तो एक बुक जो मैं पढ़ता हूँ वो मैंने पढ़ी थी, जो मुझे अभी तक याद है, which I think is very important in terms of empathy. जो मैंने कहा था वो है कि बहुत पुरानी बुक है, How to Win Friends and Influence People. डेल कार्नेगी की, ठीक है ना. तो that's a book that I've read. वो बड़े लोगों की फेवरेट. And you know कभी-कभी I just go back to that. So that's human psychology. That's the human psychology. अगर आप उस चीज को समझ लो तो जिंदगी में बहुत सी चीजें आपके लिए आसानी हो जाती हैं. सर फेवरेट डेस्टिनेशन आपने इतनी दुनिया देखी है? Favorite destination you love to go again and again? Okay. For work, for pleasure or for business? Pleasure. London is a very sexy place. बड़ी मजे की जगह है. सर ये बताएं कि any fear, any regret till now? Regrets? Having not being able to do what you could do. I think there's still mountains to climb, so still working on it. म्यूजिक का शौक है? Not much. अभी बुढ़ापा आ गया. Poetry, literature. Very boring person. पैसे जो होते हैं ना, और कितना अभी हैप्पीनेस को कैसे डिफाइन करते हैं? यार वही ना, हैप्पीनेस इज जो मैंने आपको शुरू में कहा, यार हैप्पीनेस इज यू नो यू डीप डाउन फीलिंग यार आई हैव डन जस्टिस टू व्हाट आई कुड हैव डन. अल्लाह ताला ने हर आदमी को एक टैलेंट दिया या एक कैपेसिटी दी है, ठीक है ना. और हर आदमी समझता है कि यार मैं ये कर सकता हूँ, ये नहीं कर सकता. वो आपको अंदर तो आपको हर किसी को पता होता है कि मैं कितने पानी में हूँ, ठीक है ना. बाहर जो भी वो कह ले, लेकिन अंदर सबको पता होता है कि दिस इज व्हाट आई कैन डू, दिस इज व्हाट आई कांट डू.
Happiness is being able to, you know, say, yeah, just I did what I could do. And not being happy is basically saying, yeah, मैं कर सकता था, मैंने नहीं किया. That keeps bugging you. So, सर लास्ट दो छोटे क्वेश्चन है. लीडरशिप को कैसे डिफाइन करेंगे वन लाइन में? लीडरशिप वन लाइन में, टू लाइन, थ्री लाइन, मतलब एक आप अपना आइडिया रखो कि लीडरशिप का क्या है इस मतलब. लीडरशिप इज अबाउट पीपल. आई थिंक इट्स अबाउट पीपल. लीडरशिप इज अबाउट पीपल एंड पीपल, डेवलपिंग द पीपल. It's developing, building, leading. It's about people. Leadership cannot be done in a vacuum. मैं एक कमरे में बैठ के लीडर नहीं बन सकता, कोई भी नहीं बन सकता, ठीक है ना. Leadership is about people and how you manage people, how you take people along with you, how you. It's not just you achieving your goals. It's about the team achieving its goals. ठीक है. It's about team. It's about people because you know एक आदमी can never be a leader. For you to be a leader, you need a team. And so it's all about the people. Sir, second last question. Women participation is very critical for the economic development of any country. जैसे बांग्लादेश की अभी recent example आई है कि उनकी इकोनॉमी जो थ्राइविंग की है, ये उनका टका हमारा $2 का हो गया ऐसा. तो बाकी मुल्कों में तो है ही है जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, लेकिन बांग्लादेश तो हमारा ही था ना ऐसे कुछ साल पहले. तो उनकी अब माशाल्लाह इकोनॉमी का GDP और इनकी ग्रोथ बहुत आगे जा रही है. वैसे रोड इस एशिया में एक बड़ा एग्जांपल है. तो उसकी बहुत बड़ी सक्सेस फैक्टर था उनकी वीमेन की पार्टिसिपेशन इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट. पाकिस्तान के वाले से वीमेन डेवलपमेंट एम्पावरमेंट के क्या कहते हैं सर? हम बहुत पीछे हैं इस चीज पे. women are 50% of your population if not more. आपकी वीआईपी में कितनी खवातीन काम करती हैं? ताकि हमारी वीआईपीएल में आई डोंट हैव द एग्जैक्ट नंबर, बट हमारी जैसे पूरा कॉल सेंटर इज ऑल फीमेल्स. हमारी ऑपरेशन में फीमेल है, हमारी एचआर में फीमेल है, हमारी रिसर्च में हमने फीमेल रखी हुई थी, हमारी ट्रेडिंग फ्लोर पे भी एक दो फीमेल्स थी. तो वी ट्राई टू हैव सम सॉर्ट ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन अक्रॉस द डिपार्टमेंट्स. दैट्स इंपॉर्टेंट. So you are supporting. We don't have them in the trading room right now, but we had them in the past. You are supporting the women empowerment at the workplaces. Yeah, for sure we support it. उसके बगैर तो हम no question about it. No question about it. सर लास्ट क्वेश्चन ये कि क्या बच्चों के लिए मैसेज देंगे सिल्वर लाइनिंग, क्योंकि यूथ इज वेरी डेस्परेट, वेरी फ्रस्ट्रेटेड एंड वेरी डिस्पॉन्डेंट. सर क्या इसका सिल्वर लाइनिंग है, ऑप्टिमिज्म क्या है सर आपका? आई थिंक इट्स अ माइंडसेट. आपने अपना पॉजिटिव माइंडसेट रखना है and you need to keep skill set बनाओ. कौन से 2-3 स्किल बता दें कम से कम बच्चों को. मैसेज दें कि यार ये स्किल डेवलप किए बगैर मार्केट में ना हो. नहीं, स्टॉक मार्केट की बात करें जनरली, किसी जनरल बात. देखिए जनरली तो अगर देखेंगे ना अगले 20 साल में आपको क्या लगता है कौन से स्किल्स इंपॉर्टेंट होंगे, तो ये एक MBA इन फाइनेंस इज नॉट गोइंग टू कट इट. यस, नॉट गोइंग टू मीन एनीथिंग टू बी ऑनेस्ट. इवन MBA बिल्कुल ही अब तो आगे फ्यूचर है ही इसका. और एट द एंड ऑफ द डे अगर आप गूगल को देखें और इलॉन मस्क को देखें, उनको देखें तो वो तो कहते हैं हमें डिग्री की जरूरत ही नहीं है. हमें स्किल सेट चाहिए. यस, यू डेवलप स्किल्स. अगर आपकी प्रोग्रामिंग स्किल्स है, वी विल टेक यू. इट डजंट मैटर इफ यू हैव अ डिग्री और नॉट. ठीक है ना. डू यू हैव स्किल सेट इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वी विल टेक यू. ठीक है. यू हैव स्किल सेट्स इन क्वांटम फिजिक्स, विल टेक यू. आई थिंक अभी स्किल सेट पे फोकस करें, उन स्किल सेट पे फोकस करें जो अभी नहीं, जो अगले फ्यूचर 20 साल में आपको या 25 साल में जरूरत होगी. इट्स ऑल टेक्नोलॉजी, इट्स ऑल कंप्यूटिंग, it's all artificial intelligence, it's all blockchain, renewable energy. That's where the future is, that's where the world is going. तो अगर आज कोई बच्चा होगा तो मैं उसको कहूँगा यार MBA फाइनेंस भूल जाओ. My personal old ऐसा उसको खत्म हो गया. आप go for the new things. And knowledge is everywhere. I feel knowledge आज के ज़माने में ना, knowledge एक किताबों में नहीं है. आप YouTube में खोल लेंगे तो आपको दुनिया भर का नॉलेज वहाँ भी मिल जाएगा. गूगल कर लेंगे आपको दुनिया भर का नॉलेज मिल जाएगा. But how many people actually spend time googling for physics, quantum physics में क्या होता है? कुछ ही नहीं करते. मिसयूज करते हैं. हम और चीजों में कर रहे होते हैं ना. तो knowledge is available. The idea is कि you should know कि आपको करना क्या है, पहली बात. And you know कि यार ये प्लेटफॉर्म से मुझे नॉलेज मिलेगा. आप जाएं, आपको कोई नहीं रोक सकता. Nobody can stop you. अजीज भाई, थैंक यू वेरी मच. आपका बहुत शुक्रिया. आपने देखा होगा कि आज की जो टेक अवे था अजीज साहब के साथ, जो कि CFA हैं और एक बहुत बड़ी कंपनी VIPL के CEO हैं. तो हमारी 2 चीज़ें जो मैंने आज इनसे लर्न किया है. नंबर 1, टीम वर्क. तो किसी भी कंपनी की CEO की सक्सेस का जो क्रिटिकल फैक्टर है, उसकी मैंने कोई अपनी ज़ात से भी अलावा, कोई वॉक द टॉप के अलावा, वो तो हर कोई मस्ट है, उसका इनबिल्ट पार्ट है. लेकिन असल चीज़ है डेवलपिंग द विनिंग टीम्स. उसके बगैर आपकी कामयाबी अधूरी है. सेकेंड है आपका फ्यूचर स्किल्स पे आपने फोकस करना है, आपने लेक्चर. और लास्ट में जो कंक्लूजन आज का वो इस पूरे इस इंट्रोडक्शन का 30 मिनट्स का,
वो है पीपल मैनेजमेंट। सीईओ हो, चाहे टीम लीडर हो, चाहे आपका बिजनेस हो, आप जब तक आप लोगों के साथ उनके साथ डेवलप नहीं करते, उनके साथ हैंड्स ऑन नहीं होते, उनके साथ अपने हाथ गंदे नहीं करते, उनके साथ खड़े नहीं होते, आप लोगों की साइकोलॉजी नहीं समझते, तो आप एक कामयाब लीडर नहीं हो सकते। तो प्लीज़ थैंक यू वेरी मच अजीज साहब का बहुत शुक्रिया। इस प्रोग्राम को आप अपना सीईओ टुडे टीवी पे भी देख सकते हैं, जहाज निसार मैनेजमेंट ऑफ सीईओ क्लब, सीईओ टुडे मैगजीन में भी देख सकते हैं, और इंशाल्लाह ताला हमारी बुक लॉन्च हो रही है 8 अप्रैल को, और उसमें भी सक्सेस स्टोरी भी आपको पढ़ने को मिलेगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।